Okay, so let's start. So now compulsorily acquisition of capital asset, it's there under section 45 subsection 5, and it specifically deals with compulsory acquisition of capital asset. But there are few conditions which needs to be satisfied. First condition is that compulsory acquisition has taken place. It means there is no choice available to the assessee. His property is, his capital asset is compulsorily acquired. ठीक है, so compulsorily acquired by whom? By the central government or RBI or any, the state government. So if his capital asset is compulsorily acquired, or the compulsory acquired asset must be the capital asset. Okay, so it should be a capital asset. We have already covered the definition of capital asset and also the assets which are not considered as capital assets. So under the definition of capital asset, we have also included the agricultural land situated in the urban areas. But for that case, it is not available. So urban agricultural land के अलावा सारे capital assets होने चाहिए जो compulsorily acquired हो रहे हैं. The compensation thereof has been determined or approved by the central government or the Reserve Bank of India. So जो भी compensation decide हो रहा है, which is to be paid to the assessee, it is determined or approved by the central government or RBI. Any court, tribunal or other authority has the right to enhance the compensation if necessary. So usually what happens, order pass hota hai that this particular asset is going to be acquired by the government. फिर आता है order, this is the compensation which will be given to the property holders or the capital asset holders. In that case, the assessee, in case he is not satisfied with the compensation determined by the central government or the RBI, he can file a case in the court. And in case the court decides that, okay, we have to give him certain, a kind of an enhanced compensation, then that may a case, maybe the government can file another appeal in the court that the compensation decided was the genuine one and there is no need to enhance it. So every party basically have a right to file a case in the court, and the court has the right to enhance or decrease the compensation if required. ठीक है, so these are some of the conditions which required to be fulfilled. ठीक है कि compulsory acquisition होना चाहिए, जो acquired asset है that should be a capital asset apart from the urban agricultural land. The compensation must be determined or approved by the central government or RBI, or any court or tribunal or other authority has the right to enhance the compensation. ठीक है. Next, compulsory acquisition of asset by the government is regarded as transfer and capital gain is to be calculated. So transfer की definition में compulsory acquisition है. आप देखोगे ना दोबारा जब आप revisit करोगे notes को, जब आपको दिखेगा कि हम ये पहले भी कर चुके हैं first class में. The compensation fixed by the government, not actually received by the government, will be regarded as a sale consideration. So जो भी compensation fix होगा वही sale consideration होगा, whether it has been received or not in the previous year. ठीक है. Next, the capital gains will be calculated in the year in which the compensation or the installment of the compensation is received. ठीक है. सो जिस साल भी कुछ भी छोटा मोटा जो कंपनसेशन होगा, जो मिलेगा, चाहे पूरा मिले चाहे उसका पार्ट मिले, उसी साल कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा. बट ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन पास हुआ है. ठीक है. सो जैसे ही एक्विजिशन का ऑर्डर पास हो गया और उसी दिन असेट ट्रांसफर हो गया, इससे आगे तक पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं चलेगी. ठीक है. जिस साल गवर्नमेंट ने बोल दिया द ऑर्डर हैज बीन पास्ड, उसी साल समझो एसेट ट्रांसफर हो गया. कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होंगे व्हेन एनी पोर्शन ऑफ द कंपनसेशन इज रिसीव्ड, बट फुल वैल्यू कंसीडरेशन विल बी द एक्चुअल amount which is agreed by the government or fixed by the government to be paid. ठीक है. वो फुल वैल्यू, ना कि आपको जो इंस्टॉलमेंट मिल रही है आप इंस्टॉलमेंट को ही सेल कंसीडरेशन लोगे, आप सेल कंसीडरेशन पूरी वैल्यू जो फिक्स करी है गवर्नमेंट ने वो लोगे. ठीक है. कैपिटल फोर्थ पॉइंट इज, ठीक है, दिस वी हैव डन. सो एग्जांपल, Delhi government for example has compulsorily acquired the plot of Mr. X for the construction of
Delhi Metro. The order for acquisition was passed in January 2020 and the compensation was fixed at rupees 50 lakhs. Okay? So this is the full value consideration, out of which rupees 30 lakhs was received on 15th July 2020 and 20 lakh rupees were received in May 2021. The plot was purchased by Mr. X in 2010-11 for rupees 25 lakhs. Calculate his capital gains. So capital gain कब calculate होंगे, किस साल में, जिस साल में थोड़ा बहुत भी अगर compensation received हुआ है. So जिस साल भी received हुआ है. So आप देखो receive कब हुआ है, 15 जुलाई 2020 में 30 lakhs receive हो गए हैं, बाकी 20 lakhs हुए हैं May 2021 में, which is falling in the next previous year but doesn't matter. जिस साल भी थोड़ा सा भी कंपनसेशन रिसीव हो गया, सो हमारा प्रीवियस ईयर 2021 में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा. फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगी, which is fixed by the government. So it is entire 50 lakhs, not 30 lakhs जो रिसीव हुए हैं. It is entire 50 lakhs minus the indexed cost of acquisition. So Mr. X acquired the property in 2010-11 for rupees 25 lakhs. So the cost of acquisition is 25 lakhs divided by CII of the year in which the property was acquired. So it is 2010-11 into CII of the year in which the property is transferred. Property कब transferred हुई है, January 2020 में. तो previous year कौन सा हुआ, 1920. ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन जब पास हो जाता है तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है. सो प्रीवियस ईयर 1920 का हम CII लेंगे, ना कि 2021 का. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 289 एंड नॉट 301. क्लियर है ये सबको? शुड आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? और प्रीवियस ईयर 21-22 में जो उसको बचा कुछ 20 लाख रुपए मिल रहा है ना, वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि हमने सारा कब टैक्स कर दिया, 2021 में. तो 21-22 में फिर आप कुछ भी टैक्स नहीं करोगे. क्लियर है? एनी डाउट्स टू एनीवन? प्लीज से यस और नो. नो मैम. ठीक है, नेक्स्ट. सॉरी. Assume fourth point. First we will discuss fourth point. If government pays interest along with the compensation, then such interest amount shall be taxable in the year of receipt of interest under the head income from other sources. अगर इस compensation पे कोई भी interest मिलता है, for example the government has decided to pay a compensation of rupees 50 lakhs, बट इसने पे ही नहीं करा 2-3 साल, और जब तक पे नहीं किया, जब तक क्या हुआ, इंटरेस्ट लगता रहा. वो कोर्ट डिसाइड करता है कितना इंटरेस्ट लगेगा अगर आप टाइम से कंपनसेशन पे नहीं करोगे. तो जो कंपनसेशन पे इंटरेस्ट है वो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर से उसका कोई लेना देना नहीं है. सो इट इज नॉट, it will not be added in the income under the head capital gains. It will be added under the income under the head income from other sources. इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट हमेशा अदर सोर्सेज में आता है. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने 50% की डिडक्शन अलाउ करी हुई है इस इनकम में से, बिकॉज द असेसी इज नॉट एट फॉल्ट, इंस्टेड द गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट. बट जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, इट इज एन इनकम फॉर द असेसी, सो ही हैज टू पे द टैक्स ऑन दैट, और टैक्स जाएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज. जब हम करेंगे तो ये रिपीट होगी चीज, याद रखना ये चीज. ठीक है, कि इनहैंस्ड कंपनसेशन पे जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है वो इसमें आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. ठीक है, सो हमारे पुराने वाले एग्जांपल में अज्यूम करो, दिल्ली गवर्नमेंट हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,50,000 इन जुलाई 2021 अलोंग विद द सेकेंड इंस्टॉलमेंट. ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, ये 1.5 लाख पूरा का पूरा जाएगा इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और पूरा का पूरा 50% क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा. सो ओनली 75,000 विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड. ठीक है, सो डिडक्शन इज गिवन अंडर सेक्शन 57. नेक्स्ट पॉइंट,
suppose the person who is getting the compensation, he is not satisfied. So he can file a case in the court demanding additional compensation. And in case the court grants him additional compensation, then such amount shall be taxable as capital gain in the year in which such additional compensation is received. In case only installment is received, then only installment is taxable. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज ही इज नॉट satisfied और इसने कोर्ट में केस डाल दिया कि मुझे और कंपनसेशन चाहिए. तो अब जो वो कंपनसेशन मिलेगा जो भी बढ़कर, डेफिनेटली वो कैपिटल गेन्स में तो आएगा ही आएगा. ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू उस प्रॉपर्टी का कंपनसेशन बढ़ रहा है, आपकी कंसिडरेशन बढ़ रही है. बट इस केस में क्या है, जितनी इंस्टॉलमेंट आएगी आप तब जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आएगी उस साल में ही आप टैक्स करोगे. अब आप ऐसे नहीं करोगे कि गवर्नमेंट ने बोला सपोज कि नहीं इसका इनहैंस्ड कंपनसेशन बढ़ा दो 20 लाख और. ठीक है, तो अब आप पूरा 20 लाख कैपिटल गेन नहीं करोगे. जैसे जैसे आपको अमाउंट रिसीव होगा, फॉर एग्जांपल एक साल 5 लाख मिलता है, नेक्स्ट साल 5 लाख मिलता है, उससे नेक्स्ट 5 मिलता है, फिर ये सारा इंस्टॉलमेंट वाइज होगा. ठीक है, फर्स्ट में तो क्या कहते हैं, जब इनिशियली डिसाइड होता है कि जैसे इंस्टॉलमेंट आए तभी पूरा का पूरा कर दो. बट इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन में इंस्टॉलमेंट वाइज चलता है. ठीक है, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आएगी आप कैपिटल गेन उसको अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्स करते रहना. बट डेफिनेटली इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं होगी. आप ऑलरेडी पहले उस चीज को सब्ट्रैक्ट कर चुके हो. तो इन दैट केस इट विल बी टेकन एज निल. But court expenses will be treated as selling expenses and they were allowed to be reduced. ठीक है, जो nature of capital gains होगा, whether it is long term capital gain or short term capital gain, it will remain as same. ठीक है, कैपिटल गेन के नेचर पे कोई चेंज नहीं होगा. इसका रीजन भी है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रेट्स आर देयर. स्मॉल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अलग टैक्स रेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अलग टैक्स रेट्स होते हैं. सो जो भी कंपनसेशन का नेचर है कैपिटल असेट का, वो सेम नेचर ही होगा इनहैंस्ड कंपनसेशन का. ठीक है, नाउ अज्यूम इन द सेम एग्जांपल Mr. X files a case in Rohini court demanding additional compensation of rupees 25 lakhs. The court grants him additional compensation of rupees 18 lakhs, out of which 10 lakhs are paid by Delhi government on 24 January 2022 and the balance is paid on 24th July 2022. So अब इसमें इंस्टॉलमेंट्स आ रही है तो इंस्टॉलमेंट वाइज ही हम टैक्स करेंगे. इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है. सो एक होगा आपका 21-22 में और एक होगा 22-23 में. सो 21-22 में आएगा 10 लाख, बाकी बचा हुआ 8 लाख आएगा 22-23 में. कोई कोर्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो दे आर निल. कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो आपका जो पुराना था, पुराने में हमने डिसाइड किया था ना इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इस केस में भी इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली. ठीक है, सो नेचर ऑफ कैपिटल एसेट डजंट चेंज. क्लियर है एनहांस्ड कंपनसेशन का? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मैम इफ वो प्रीवियस वाले में लॉस हो जाता है एंड 10 लाख अभी जो प्रॉफिट है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट होता? हाँ, नहीं सब्ट्रैक्ट क्यों होता? आप अब पे कर रहे हो ना इस पे तो टैक्स. वो आप तब लॉस हुआ था तो अब आपकी इनकम रिड्यूस हो गई थी ना. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो वैसे भी स्लैब रेट्स में नहीं लगते. अगर लॉस होता है तो कोई फायदा नहीं मिलता, गेन पे ही टैक्स लगता है. ठीक है, रिड्यूस वाला कंसेप्ट नहीं हो रहा. मैं यहाँ पे देखो ऐड नहीं कर रही हूँ कुछ भी. मैं बस प्रीवियस ईयर 21-22 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा दूंगी. इसका 10 लाख और इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा उसे. फिर नेक्स्ट ईयर में जब उसको 8 लाख मिले तो उसको 8 लाख पे करना पड़ेगा. पुराना वो ऑलरेडी पे कर चुका है प्रीवियस ईयर 2021 में. समझ रहे हो? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. पुराने में कहीं नहीं ऐड हो रहा है. इनहैंस्ड कंपनसेशन जिस साल इंस्टॉलमेंट मिल रही है उस साल टैक्स भरते चलो जितनी मिल रही है. अब सपोज 6th point, if the person loses the case in the court and the compensation is reduced
then the capital gains will be recalculated again in the year in which the court case is lost. For example, इसी सेम एग्जांपल में दिल्ली गवर्नमेंट ने अब फाइल कर दिया केस in Delhi High Court against the order of Rohini Court. And subsequently, Delhi High Court has decreased the additional compensation from 18 lakhs to 10 lakhs. ठीक है, अभी enhanced किया था ना 18 लाख, उसने क्या किया 18 से 10 कर दिया. And the court has passed the order in January 2025. Court expenses incurred were rupees 50,000. Now just imagine the situation of Mr. X. He has paid the tax of rupees 50 lakhs in the previous year 2021. ठीक है, 21-22 में उसने कुछ भी पे नहीं किया, क्योंकि वहां पे क्या होता है, चाहे कोई भी इंस्टॉलमेंट आए या पूरा सेल कंसिडरेशन जो ऑर्डर फिक्स किया है गवर्नमेंट ने वो ले लेते हो. उसके बाद उसने केस फाइल किया और उसको इनहैंस्ड कंपनसेशन मिला 18 लाख का, जो उसको प्रीवियस ईयर 21-22 में 10 लाख पे पे कर दिया उसने, और 22-23 में 8 लाख पे पे कर दिया उसने. अब दोबारा से दिल्ली गवर्नमेंट ने केस डाला और कोर्ट ने ऑर्डर, कोर्ट केस चलता रहा कुछ 2-3 साल तक, और जनवरी 2025 में कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये 18 सही नहीं है, इसको 10 कर दो. ठीक है, सो कब आया ये, प्रीवियस ईयर 24-25 में. सो अगर ऐसा कोई केस होता है तो अब हमें कैपिटल गेन्स फिर से कैलकुलेट करने हैं, और जो भी डिफरेंस होगा फिर वो क्रेडिट किया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को. सो इंस्टेड जो उसका जितना उसने अभी तक दिया है और उसका कितना बनता है, सो अब जो नया उसका बनता है वो कितना बनेगा, 50 लाख ओरिजिनल और 10 लाख इनहैंस्ड. 60 लाख उसके टोटल बनते हैं. 60 लाख माइनस एनी कोर्ट एक्सपेंसेस जो अगर उसने इनकर किए हैं 50,000 वो सब्ट्रैक्ट हो गए. सो इट इज 59,50,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. So indexed cost of acquisition will remain same, क्योंकि asset is actually transfer on the year in which the order has been passed. ठीक है, सो हमारा कितना था पुराने में जब हमने कैलकुलेट किया था, what was the index cost of acquisition? It was 43,26,347. So it will remain same. ठीक है, so it is 43,27,347. So this is the long term capital gain he should pay. And now see how much he has already paid. मतलब टैक्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, क्योंकि अभी ना टैक्स रेट्स आए नहीं है, अभी मैंने कराए नहीं, इसलिए आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट. ठीक है, सो इससे पहले इसने कितने पे किया है, 6,73,653 प्लस 18 lakhs जो इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन था. टोटल 24,73,653 रुपीज पे ही हैज पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट. और अब इसका एक्चुअल में टैक्स कितना बनता है, मतलब जो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बनता है, 14,44,012. सो इसने 10,29,641 एडिशनल टैक्स पे कर चुका है. सो जो भी इसका टैक्स रेट लगा के हम अभी करेंगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी होगा वो फिर इसको रिफंड मिलेगा, बिकॉज ही हैज पेड सो मच टैक्स टू द गवर्नमेंट इन एडवांस. ठीक है, अंडरस्टूड है ये कंसेप्ट. ठीक है, क्वेश्चंस हैं बुक में, जब आप प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस कंपनसेशन, बट द रीजनिंग विल रिमेन द सेम. इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल से मैं आपको सबको समझा रही हूँ, क्वेश्चंस में आपको सारे अलग अलग मिल जाएंगे बुक्स में. Now suppose if the person die before receiving the compensation, then such compensation will be taxable in the hands of the person whosoever receives it. ठीक है, so in case the person die during that particular process, जिसको मिल रहा है उसके लिए फिर it will be taxable. ठीक है, so this completes compensation part.